Welcome, dear viewers. Today in this lecture, we will talk about the political institutions in ancient Greece. Athenian democracy, as we have earlier discussed, it had three main political institutions: ecclesia, ball, dicasteria. The citizenship was restricted to the freeborn Athenian males. जो सिटीजनशिप थी वो सिर्फ फ्री बॉर्न एथेनियन मेल को हासिल थी. वुमेन्स were the excluded from the citizenship. Slaves and aliens were also excluded from the citizenship. Only the freeborn Athenian male were eligible for the citizenship. There were the concept of direct democracy. Citizens participated in decision making directly. The first political institution was the ecclesia. आजकल हम कह सकते हैं कि it was like a legislature. पाकिस्तान में पार्लियामेंट कहा जाता है, और in simple words we can say that legislatures. और आजकल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के जो लेजिस्लेचर होते हैं वो बाई कैमरल होते हैं. तो इट वाज आल्सो लाइक द ecclesia लाइक असेंबली. पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि लाइक आवर नेशनल असेंबली, यूएस में लाइक द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. Ecclesia was the central institution of Athenian democracy. It was open to all male citizens over 20 years old. जो 20 years old तक जो सिटीजन पहुंच जाता था तो वो एलिजिबल होता था टू द पार्टिसिपेशन इन द ecclesia. इसका जो कोरम था वो 6000 सिटीजन out of approximately 50,000 citizens. It made 40 times a year, every 9 days. After every 9 days. ये डिसीजन करते थे ऑन वॉर, पीस, अलायंसेस, डोमेस्टिक पॉलिसीज. और इसका जो वोटिंग का तरीकाकार था, वोटिंग बाय शो हैंड्स. द पावर इन द फंक्शन ऑफ ecclesia. So the functions of the ecclesia were the pass the laws and policies, to making the laws. इसका पहला काम जो था वो making the law था, to make the law, to pass the law, to pass the policies. The second function था supervise state officials. The third function was discuss taxation, trade and military matters. The fourth functions of this ecclesia was the hard cases of Isingalia, treason charges. Fed 3 obols per meeting to encourage participation. 3 obol. Obol was a type of their currency. जो पार्टिसिपेशन करते थे ecclesia में उनको ये 3 obols जो है पर मीटिंग देते. पार्टिसिपेशन इन ecclesia, ये सब मेल सिटीजन इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते थे. जिस मैंने पहले भी कहा, इसका कोरम 6000 था, यानी कि एटलीस्ट 6000 लोग तो चाहिए थे इसमें पार्टिसिपेशन के लिए. इक्वल राइट टू स्पीक्स, इसकी जो अहम बात, एसिगोरिया, सबको इक्वल राइट ऑफ दी स्पीक. डेमोक्रेसी के लिए तो लाजिम एलिमेंट्स होता है, पैरामीटर होता है फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, वो तो स्पीकिंग, राइट ऑफ स्पीकिंग होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है. एंड इट encouraged parrhesia, mean frank speech, and the right of a type of free speech, I can say.
वोटिंग बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ओपिनियंस इसमें होता था. रेड डाइट रोप यूज टू पुश सिटीजन टू दी असेंबली. देखिए इसका कोरम एटलीस्ट तो 6000 लोग चाहिए थे. जैसे मैंने बताया कि लगभग 50,000 के लगभग सिटीजन थे, तो इसके लिए कुछ लोगों को मुकर्रर किया गया था. वो स्ट्रीट्स और जो डिफरेंट टाउन्स वगैरह में घूमते थे, और जब ये असेंबली के सेशन का दिन होता था तो उन लोगों को वो रेड डाइट रोप से जो लोग इनके पुश करते थे ताकि वो असेंबली के इजलास में जो है शिरकत कर सके. The second political institution was the ball. It is also called the Council of 500. 500 members, 50 from each of the 10 tribes. पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक रिफॉर्म के तख्त एटेका और एथेंस के जो एथेंस को 10 ट्राइब्स में तकसीम किया गया था. तो इन 10 ट्राइब में से, चूंकि हम एथेनियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे, तो हर ट्राइब जो है वो 50 इंडिविजुअल को इस बॉल काउंसिल ऑफ द 500 में भेजा था. एंड देयर मेंबर्स वर सेलेक्टेड एनुअली बाय लॉट सॉर्टेशंस. और अंदाजे के जरिए इसकी मेंबर्स की सिलेक्शन होती थी. एज रिक्वायरमेंट 30 years are old. In simple words, it was like the Senate. जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में सेनेट होता है और यूएस में भी सेनेट होता है, यानी कि a type of upper house आप कह सकते हैं, which membership was distributed on the basis of equality. Responsible for the preparing the agenda for the ecclesia, supervise public official. The power and the functions of the ball. Adopted probonomata, mean preliminary proposals, and supervise the finance and taxations. Audited magistrate आफ्टर देयर टर्म्स. जब मजिस्ट्रेट जो थे वो रिटायर होते थे तो बोल द 5 काउंसिल ऑफ 500 उनका ऑडिट करता था. ओवरसॉ मिलिट्री इन पब्लिक वर्क्स, लिमिटेड टेन्योर, सिटीजन कुड सर्व ओनली ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम. द थर्ड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वाज द डिकस्टेरिया, कोर्ट्स एंड ज्यूरी सिस्टम्स. ये उनका अदालती निज़ाम था. जैसे आजकल हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होती है, कोर्ट्स अदालतें होती है. लॉर्ड सिटीजन जूरीज, इसमें तकरीबन 201 से लेकर 501 मेंबर्स इसके होते थे, कभी कभी इससे भी ज़्यादा. ये जूरीज पे मुश्तमिल होते थे. chosen annually by lot from 6,000 jurors. 6,000 जुर्र में से तकरीबन 500 को थ्रू दी लॉट, थ्रू दी सॉर्टेशन और अंदाजी के जरिए मुंतखब किया जाता था. नो लॉयर्स, सिटीजन आर्ग्यूड देयर ओन केसेस. वकील उस वक्त जो है वकील नहीं होते थे. सिटीजन अपने जो केसेस है उनको खुद वो आर्ग्यूट करते थे. ओपन टू ऑल मेल सिटीजन अबव टू 30 years. लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स, टाइप ऑफ केसेस, सिविल डिस्प्यूट्स को डील करती थी, क्रिमिनल चार्जेस एंड करप्शन केसेस को. मजिस्ट्रेट ओवरसॉ ट्रायल्स. पेनल्टीज रेंज फ्रॉम फाइन टू एग्जाइल एंड एग्जीक्यूशन. एग्जाइल और एग्जीक्यूशन तक जो है ये कुछ लोगों पे फाइन लगाती थी. अगर ज़्यादा लोग जो है वो जुर्म कर लेते थे तो उनको एग्जाइल भी ये करते थे और
एग्जीक्यूशन तक। एग्जीक्यूशन से मुझे याद आया, लेटर ऑन हम इसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। सोक्रेटिस की जो डेथ हुई थी, ये भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू दी वन सोर्स कि ये इसी जो डिकस्टेरिया है, इस डिकस्टेरिया में डिकस्टेरिया ने उनको एग्जीक्यूट किया था। जोड़े मेंबर वर फेल्ट एनकरेजिंग फॉर सिटीजन टू पार्टिसिपेट। सिटीजन जितने भी सिटीजन थे वो उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते थे, यानी कि above the 30 years age. Athenian democracy was direct and participatory. The ecclesia, ball and dicasteria played crucial roles. इन तीन organs ने जो तीन institutions थे, political institution of the Greek democracy, in the promotion of democracy में they have played important role. Citizen had significant control over governance. वो कैसे? इनके थ्रू ecclesia, through ball और through dicasteria citizen जो है अहम किरदार अदा करते थे in the control over the governance. Innovation like Isogoria, equal speech and jury selection by lot made Athens unique. The system influenced modern democratic practices. आज जितने भी दुनिया में अगर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या अथॉरिटेरियन सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की सिस्टम है, हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नज़र आते हैं। लेजिस्लेचर्स कई ममालिक में बाई कैमरल, कुछ ममालिक में यूनिकैमरल, और अदालतें भी होती है। तो ये सारे जो मॉडर्न सिस्टम है ये इन्फ्लुएंस हुआ है फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।